السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. واہ جی واہ جی ناظرین، آج چینل تک کا سفر میرا اتنا انٹرسٹڈ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کسر باقی رہ گئی تھی. کیا ہوا جناب علی؟ سائیکل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سائیکل نہیں، موٹر سائیکل ہے. اچھا، پھر میں ہی پاگل ہوں گا یار. یہ تمہاری میانہ رویہ، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اگر آپ اس کو جناب تفصیلی دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ موٹر سائیکل ہے. یہ سائیکل ہے اور اس کے پیچھے یہ دیکھو میں نے موٹر رکھی ہوئی، اس لیے اس کو اگر رلا کے دیکھیں گے تو یہ موٹر سائیکل ہی ہے. تو آپ کا اسکوٹر کہاں گیا ہے؟ اسکوٹر بیچ کے موٹر سائیکل لے لیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں تمہاری پرجائی مجھے 2-3 دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ موٹر سے ہی کرا لو. اچھا. تمہارے اتوار تک شو ہے، پھر سوموار سے تم نے گھر کا کام بھی شروع کرنا ہے. تو میں ٹال رہا تھا، میں نے کہا چلو سوموار. ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ. تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ ان 4 دنوں میں تم گھر کا کام نہیں کرتے؟ نہیں یار، تھوڑے بہت کرتا ہوں چلو، مگر وہ ہاتھ والا نلکا گیڑ کے کھلیاں پڑ گئی ہیں یار. منہ نہ کھلایا کرو میرا. اس لیے میں نے سوچا تھا کہ چلو موٹر سے ہی کرا ہی دو. ویسے یہ جو 4 دن شو والے ہوتے ہیں نا، اس میں میری عزت ہوتی ہے، ایسی بھی بات نہیں. صبح شام نہیں کام مجھ سے لیا جاتا. البتہ یہ سوموار منگل بدھ مجھے فل ٹائم ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا سوموار کو نکلوں گا موٹر سے ہی کرانے. چلو 2-3 دن موٹر کے ٹھیک ہونے کے بہانے میں نکل جائیں گے. مگر وہ پھر آج انہوں نے سختی کیا، انہوں نے کہا کہ نہ، اتوار کو ہوتی ہے چھٹی، یہ جمعے اور ہفتے کے درمیان موٹر سے ہی ہونی چاہیے. اچھا. تو پھر میں لے کے نکلا ہے، پھر میں کیا کرتا. چلو یار، یہی غنیمت ہے کہ اتنا مان گیا ہو کہ 3 دن تم گھر کا کام کرتے ہو. خود مختار شوہر صاحب بہت اچھے، اپنی طرف سے بڑا مار کا مارا بھائی. واہ 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 واہ. کھودا پہاڑ اور نکلے 3 دن. میرے 3 دن سنا رہے ہو، تم اپنی سناؤ. تمہارا تو اس جج والا صاحب ہے نا جس کے سامنے ایک بانڈ پیش ہوا. بانڈ نہیں ہوتے، نشہ کرنے لگ گیا ہوا تھا، چوریاں کرنے لگ گیا تھا، پکڑا جاتا تھا. اچھا. 2-3 باری پیش ہوا جج کے سامنے. 3 باری پیش ہوا نا تو جج کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج 30ویں مرتبہ تم عدالت میں آئے ہو. وہ آگے سے کہتا ہے جناب تسی روز آؤندے ہو، میں تمہیں کچھ کیا اس لیے تم تو رو ہی کرتے ہو کام کر کے، میں تمہیں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ یقین کرو، مجھے اپنے گھر کے کچن میں اگر جانا پڑے تو میں راستہ پوچھ کے جاتا ہوں کہ کہاں ہے کچن. اس لیے کہ سارے بار گھوڑے میں ہی آ جاتے ہیں برتن، اندر بھی نہیں پرجائی جانے دیتی. خبردار پلیٹیں توڑتے ہو. رہنے دو، ادھر کھورے میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر ہی تو کے تو چلے جاؤ. بس ادھر 4 کے اوپر کھلار دو، ہم خود ہی اٹھا لیں گے. چھوڑا گیا وہ جس کے پاس تم پیڑھی ڈا کے بیٹھے ہوتے ہو بڑی پھوپھو کی طرح، وہ کھورا ہوتا ہے. کھورے کا نہیں پتا. ماں چھت کے جائے جہاں کپڑے وپڑے بھی دھو لیتے ہیں. کھورا کہتے ہیں؟ نہیں، فریج کہتے ہیں، فریج. سر آپ خود لوز بال دیتے جا رہے ہیں. جان بوجھ کے مجھے تنگ کرتا ہے، تمہیں نہیں اس کا پتا. شروع کرو خبروں پہ تبصرہ. اچھا جی، جمہوریت کے نام پر چور اکٹھے ہیں، ڈالر کی قیمت کم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. شیخ رشید نے اس بارے میں قوم کی صحیح رہنمائی کی. جمشید دستی. کیا ویسے یار، ویسے یہ جمشید دستی بھی مجھے آہستہ آہستہ جمشید زبردستی لگنا شروع ہو گیا. حد ہو گئی. اپنی طرف سے یہ جے سالک کی کاپی نہیں کر رہے. یاد ہے تمہیں جو جے سالک صاحب ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے کہ ایسی کوئی چیز کر دینی ہے کہ میڈیا والوں نے دوسرے دن ساروں نے صرف جے سالک کو ہی موضوع بنایا ہوتا تھا. عزیز صاحب، جے سالک کیا کیا کرتے تھے؟ ایسی مداری. جے سالک صاحب بڑے زبردست کام کیا کرتے تھے. کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے اخبار کے دفتر میں بیٹھا ہوا تو میرے موبائل پہ جے سالک کا فون آیا. انہوں نے کہا جی جلدی سے اپنے دفتر کے باہر آئے. میں گھبراہٹ میں باہر گیا تو دیکھا کہ گدا گاڑی کے اوپر ایک بڑا سا پنجرا ہے اور اس کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے خود. ہاں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے پورے شہر کا چکر لگاتے تھے. اگلے دن سارے صرف بحث ہی جے سالک پہ کرتے تھے.
یہ جمشید دستی صاحب بھی زبردستی بیان دے کے تو موضوع بحث بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جانے تو دستی صاحب خدا کے واسطے کو 4 دن خوشی کے بھی گزر جانے دیں. ڈالر چلو تھلے آیا ہوا ہے جس طرح بھی آیا ہے یار اس کو تھوڑا انجوائے کر لیں, چھوڑ دیں کم غصہ, تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں. منہ ہی آپ کا اس قدر بٹا ہوا ہے کہ استغفراللہ, حد ہو گیا. بالکل ننان والی طبیعت ہے جمشید دستی کی. ننان نہیں جیسے کہا رہتی پرجائی کے, پرجائی پوشاک اس کے اگے مور پکا کے رکھ دے, ننان نے کہنا ہوتا ہے نمک کاٹ ہے. مور کون سی ڈش ہے یار مہنگی کر کے بتانی تھی تو مور کہہ گیا ہوں. وہ کہنا وہ تھا وہ کیا دوسرا پرندہ ہوتا ہے اہرن پرندہ. یار کیا مان سے مجھے پاگل کر دیا دستی صاحب آپ نے. تمہیں مہنگے کرنا ہے تو چکن میں زعفران ڈال دو یار. تو دیکھے گا کون کدھر ہے زعفران, اس کا تو بتانا پڑتا ہے ساتھ. جب شیخ دستی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھے جناب, اس طرح نہ ہو کہ شیخ رشید صاحب جیسے اسمبلی کی سس مشہور ہیں, آپ اسمبلی کی ننان مشہور ہو جائے. اپوزیشن رکن احسن ریاض فتیانہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ 42,000 میں گزارا نہیں ہوتا. ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے تو عوام کے حقوق کیسے حاصل کریں گے؟ یہ بات اس کا مطلب ہے ارکان اسمبلی اپنے حقوق حاصل کر کے اصل میں حقوق حاصل کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں عوام کے لیے. یہ تقریباً 4 سال 11 مہینے تک پریکٹس کریں گے, پھر جو 1 مہینہ بچے گا عوام کے حقوق حاصل کریں گے اسی پریکٹس کی بنیاد پہ. تو یار وہ نواں بندہ ہے اکاؤنٹ, کیا نام بتا رہی ہو؟ احسن ریاض فتیانہ. ہاں یہ ریائی فتیانہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کا بیٹا ہے. تو لائمن وہ بیچارے نے آہستہ آہستہ ہی کام سیکھنا ہے نا, کالی نہ کر لیا کرو. ویسے اپنا احسن صاحب ریائی فتیانہ اگر آپ کو 42,000 کی یہ نوکری ٹھیک نہیں لگتی تو آپ کس لیے جناب کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنی زمینیں ہیں ادھر وائی بھی لواں ٹریکٹر چلانے کا جو مزہ آتا ہے, اوپر ٹیپ ریکارڈر لگا ہو, نصیبوں کے گانے لگے ہوں, ہائے ہائے اتنا ہنسا آتا ہے جب ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر نصیبوں کی کیسٹ لگی ہوتی ہے. پتہ نہیں چلتا نصیبوں گا رہی ہے یا نصیبوں کو کوٹ پاڑ رہی ہے. ڈالر سستا ہونے کی وجہ سامنے آ گئی. سعودی عرب نے نواز شریف کی ذاتی ضمانت پر $1.5 ارب دیا. 1.5 ارب ڈالر کی گارنٹی دے دی ہے. بڑی یار یہ کیا کر رہے ہیں ایمان سے میاں نواز شریف صاحب. میاں صاحب خدا کے لیے 1.5 ارب ڈالر کی گارنٹی آپ نے دے دیا ہے. اور یہ ماننا دیکھے کون سا جا رہا ہے. اب تو کوئی چائنا کے موبائل کی گارنٹی نہیں دیتا. حد ہو گئی والی, آپ نے کٹھے 1.5 ارب کی گارنٹی دے دی. خدا کے لیے میاں صاحب آپ نے کسی ضمانت میں پڑیے گا, کیونکہ جناب آگے گرمیاں آ رہی ہیں, میں نے قسطوں پہ UPS لینا ہے, اس میں پھر آپ کی ضمانت کی ضرورت پڑے گی. یار میری بات سنو, کہیں اس سے یہ بات تو نہیں ثابت ہوتی کہ نواز شریف صاحب کے پاس کم از کم $1.5 ارب تو ہے جو سعودی عرب نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے. یار خدا کے لیے انہوں نے یاتی ضمانت دی ہے اپنی, پیسوں کی ضمانت نہیں دی. ویسے میاں صاحب تمہاری بات ٹھیک ہے, سوکھے آدمی ہیں. میاں صاحب کا کوئی اس راج والا صاحب تو نہیں ہے نا جو ایک پلاحیہ بنانے گیا نا, تو پلاحیے کا مالک کہتا ہے کہ گال سنو چاچا اپنا پلاحیہ تو شروع تو کرنے لگا بنانا, مگر یہ دھیان سے بنانا. 6-7 من یہ پلاحیہ ہے, اللہ نہ کرے کو یل میں گر نہ جائے. آگے سے راج کہتا ہے چوری صاحب چھڑ دیو, میری گارنٹی ہے, فکر نہ کرو. وہ پلاحیے کا مالک نے اس کے سامان کی طرف دیکھا, اس نے کہا ایک تمہارے پاس کانڈی ہے, ایک تمہارے پاس یہ سال ہے لاٹو والی, اور ایک پھٹی ہے. یہ مانت کس بات کی دے رہے ہیں؟ وہ میرا کروڑوں کا پلاحیہ ہے, تم 750 کے اپنے یار لے کے تو اس کی ضمانت دینے آ گئے. ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب واقعی سوکھے بندے. سرکار آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بریک میں دکاندار کو موٹر دے ہوں. ٹھیک ہے, جلدی سے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں کہاں رہ گیا؟ آ گیا جی, آ گیا جناب, آ گیا. یہ دیکھو آ گیا جی, دوپہر کا زمیمہ آ گیا جی. یار ویسے حد ہو گئی ہوئی ہے 5 جناب.
अमान से मैं तो हैरान होता हूँ, इस मुल्क में माड़े बंदे की क्या जिंदगी है। क्या हो गया? हुआ क्या? और जिस बंदे से मोटर खरीदी थी उस वक्त मुझे कहता था भाई जी 6 महीने की गारंटी है। अब जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये तो अभी 3 महीने नहीं हुए तो ये सड़ गई है, 6 महीने की गारंटी। आगे से कहता कि भाई जी केड़ी गारंटी? और मैंने कहा तुमने दी थी गारंटी। कहता कहाँ मैंने लिख के दी थी? मैंने कहा यार तुमने मुझे कहा था उस वक्त। तो कहता जी मैंने नहीं कहा हुआ ले जाए इधर से मोटर। रसीद है तुम्हारे पास? नहीं रसीद मेरे पास यार कहाँ से आ गई, इतना कौन सा मैं ज्वेलरी खरीद रहा था रसीद ले लेते। लेकिन नजीर साहब रसीद लेना जरूरी था। वो तो बात ठीक है मगर मेरा जानने वाला है, अच्छा भला यार रशीद एल्बो बेहतरीन, बड़ा देर से मेरा दोस्त है। हम छेड़ा करते थे एल्बो सुना कितने दुकान है आजकल। रशीद एल्बो क्या यार, जो तुम्हारे घर दूध देता है वो नजीर मिल्को है? और नहीं यार इसकी बच्चों ने महल्ले में छेड़ डाली हुई है। एल्बो जब भी इसको कोई भी चीज दिखाए ना भाई जी कहते जी एल्बो लीक कर गई है, तो फिर इसका नाम ही एल्बो डाल दिया। बहरहाल यार इस मामले में सरासर कसूर तुम्हारा है, तुम्हें बाकायदा रसीद लेनी चाहिए थी और वारंटी कार्ड लेना चाहिए था, उसको स्टैम्प करवाना चाहिए। आज ये बात तुम्हारी वाकई ठीक है, ये अवेयरनेस अभी तक हमें नहीं आई। और हमें ये चाहिए कि बाकायदा रसीद कटवा के मोर्शर लगवा के, ताकि अगर आपने झगड़ा ही है उसके साथ या बहस करनी है तो आपके पास कोई सबूत तो हो। बल्कि हजूरे वाला अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँ तो आपको बताता चलूं कि कल वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, यानी सार्फिन का आलमी दिन है कल। वर्ल्ड कंज्यूमर डे वाले दिन ही मेरे साथ ये होना था। इसी तरह वो जो वैलेंटाइन डे वाले दिन तुम्हारी परजाई ने मुझे कुटा, मेरे लिए ये आलमी दिन पुठे ही आते, ये मनाए तुम्हारे लिए जाते। मेरी बात सुनो, ये ना सबसे बड़ा जो अब रोना रोते हैं हस्बे आलमी भी के ये हमारे कंज्यूमर राइट्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ कंज्यूमर राइट्स की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले कंज्यूमर सेंस का जिक्र होना चाहिए। बस ये तो कौम हमारे अंदर कंज्यूमर सेंस ही डेवलप नहीं हुई, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, दुकानदार को पता है ना को उसको खौफ है ना गाहक के पास को दलेरी और ना उसको समझ आ कि मैंने हक कैसे लेना। सब्जी वाली हट्टी पे चले जाओ, उधर झगड़ा हो रहा होता है, टमाटर का ले दे देते नहीं, छोटा मुंडा आया तो तेन शर्म नहीं आती, बाल आवे तो जोड़ा मर्जी सौदा चुका देने जो तेरा वेकदा नहीं हो, मेरे बच्चियां फड़ा देना तू। अच्छा हुकूमत से बात करो तो वो कह देते हैं जी हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बना दिए। अब कंज्यूमर कोर्ट्स की कारकर्दगी अपने तौर पे बहुत अपने तय अच्छी होगी, लेकिन कभी उनके फैसलों पे गौर करो, किसी दर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, किसी हजाम के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं या बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जिनसे अवाम को हकीकी तौर पर शिकायतें हैं, उनके खिलाफ तो मैंने कभी कार्रवाई नहीं सुनी। नहीं उनके खिलाफ तो आप मीडिया वाले भी नहीं बोलते कि इश्तिहार। हाँ ये भी एक वजह है, सीधी बात है, ये भी एक वजह है। इस मुल्क में हर बुरे काम के पीछे अगर तुम देखोगे ना तो वजह एक ही होगी, जिसकी लाठी उसकी बैंड। एग्जैक्टली, जिसके हाथ में डंडा है, जो तगड़ा है उसके नेड़े कोई नहीं आता, या जिसको कोई डरावा है किसी के पास उसके पास कोई नहीं। अब ये भी डरावे वाली बात है ना कि हमारे यहाँ एक जो तन्हा कंज्यूमर है सारिफ है, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। और पूरी दुनिया में जो सार्फिन की इंग्लिश में आपने क्या कहा? मैं अभी यही कहने वाली थी कि कंज्यूमर को अपनी ताकत का, अपनी अहमियत का पता ही नहीं है। नहीं अंग्रेजी में आपने क्या? अंग्रेजी में उसने तुम्हारे खिलाफ बात की है कोई? क्या? आई वॉज अबाउट टू से दैट। ये क्या है? मैं अभी यही बात करने वाली थी। तो ये इसी तरह बात करो जरूर, तुम दानिश्वर को कंफ्यूज करती हो। सॉरी मैंने कंफ्यूज कर, सॉरी जी आई एम सॉरी, मैंने समझा तो मेरे खिलाफ बात जी, तुम्हारे खिलाफ ही की थी उसने बात, बाद में गोल यार जोड़ा फिर रहने दो अनुमान शुणवाना, ये क्या बात है? आपके खिलाफ मैं बात कर ही नहीं सकती। मैंने बताऊँ ये प्रॉब्लम ही हमारे यहाँ ये है कि पूरी दुनिया में जो कंज्यूमर सेंस डेवलप हुई है वो इसी बुनियाद पे हुई है कि कंज्यूमर ताकतवर बन गए हुए हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर बेचारा माड़ा सा बंदा होता है, वो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यानी इस कंपनी का मैं तन्हा क्या कर सकता हूं। पूरी दुनिया में जो कलेक्टिव एफर्ट होती है और उसकी सबसे जो अहम शक्ल है, सबसे जो उसकी मौसर तरीन शक्ल है, वो कंज्यूमर की तंजीमें हैं। हमारे यहाँ भी हैं लेकिन बराए नाम है। अरे बात तो सारी तुम्हारी ठीक है मगर अंग्रेजी वाली गाली मैं तुम्हें एक मिसाल दूं, तुम सुन के हैरान रह जाओगे कि कंज्यूमर कितना ताकतवर होता है कि रवांडा अफ्रीकी मुल्क छोटा सा जिसकी हम पसमानदगी की मिसालें देते नहीं थकते, हम मिसालों में कहते हैं रवांडा में 2 साल पहले एक किसी दुकानदार किसी यानी बड़े स्टोर पे एक मल्टीनेशनल कंपनी के दूध का पैकेट वो खराब निकला था और वहां की अदालत ने
उस मल्टीनेशनल कंपनी के जितने मिल्क प्लांट्स थे पूरे मुल्क में वो बंद कर दिए थे। नहीं, ताकत तो यही होनी चाहिए, मसला फिर ही हल होगा। ये मिलावट शिलावट ये वो जितनी भी है ना, ये कंज्यूमर के हवाले से। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि उसने क्या कहा था। नहीं, वो नहीं मैं बोलता, तुम बेकर ना करो। तुम ब्रेक भी लोगे तो बात पूछ के छोड़ूंगा कि हुई क्या थी। बल्कि आप प्रोड्यूसर को बुला लीजिएगा, वो ट्रांसलेशन करके बताएगा कि मैंने क्या कहा था। नहीं, मैं रिवाइंड करके देखूंगा घर जाके इंटरनेट से निकाल। हमारी औकात ये है एक कंज्यूमर के तौर पे कि कितने साल गुजर गए, हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हम बिजली के बिल की मद में क्या क्या अदा करते हैं। बिजली का बिल नहीं हमें समझ आया आज तक। ये है हमारी इसी तरह से ये नहीं पता चलता कि अंग्रेजी में क्या क्या कह जाते हैं। और जिस दिन ये पता चल जाए कि अंग्रेजी में क्या कहा है इसने, उस दिन बिजली के बिल का भी पता चल जाएगा। अच्छा अजीज साहब, ये जो सार्फिन का आलमी दिन मनाया जा रहा है ना, ये पता है किसके लिए मनाया जा रहा है? ये जो मोबाइल के सार्फिन है ना, कंज्यूमर्स हैं, उनका स्पेशल है। यानी कि ये जो मोबाइल कंपनियां जो कंज्यूमर के साथ अंग्रेजी में कपड़ा करती हैं उसके हवाले से। हर अंग्रेजी में कपड़ा नहीं होता। और यार हमें क्या कंज्यूमर सेंस होनी है? हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे इतनी अजीब अजीब हालत है कि एक दुकान पे एक कंपनी की चीज अगर 10 रुपए की मिल रही है तो उसी कंपनी की चीज बिल्कुल साथ वाली दुकान पे 13 रुपए की मिल रही है। अच्छा, तो पूछने वाला ही नहीं। अच्छा, पूछने वाला इसलिए नहीं है कि जो पूछने की ताकत रखता है उसकी दिलचस्पी नहीं होती। 2 रुपए के फर्क वो लिफ्ट ही नहीं कराता कि 1-2 रुपए के लिए मैं क्यों लड़ाई झगड़ा मोल लूं। और जो बेचारा इस बात से मुतासिर होता है वो अपने आप को इतना कमजोर और नातवा समझता है कि वो बात ही नहीं करता बेचारा। तो फिर इसमें मेरा ख्याल है फॉल्ट तो तुम्हारा ही है ना। क्या तुम्हें पता जो है तो क्यों नहीं पूछते? तुम्हें ना फर्क पड़े 2-3 रुपये। सही है। और ये को तो पड़ता है ना, पूछा करो फिर जाके। बिल्कुल। अभी मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलो आप इससे पूछो अंग्रेजी में क्या कहा इसे। भाईजान, मैं एक तेजी से खत्म होते हुए एक मुआशरती रुझान की या आदत की बात करना चाह रहा हूं, और अफसोस की बात यह है कि इसको मैं याद माजी के बैनर तले डिस्कस कर रहा हूं। नहीं तो चलो ना रखो नाम याद माजी, और कोई रख लो। याद माजी इसलिए कि ये खत्म होती जा रही है, ये रुझान या ये आदत। और आदत ये है कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर चंद दिन के लिए क़याम करना। अच्छा, तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं थी होती? क्यों? इतनी जाकर उधर रोटी खाते थे बच्चे, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, सिर्फ गुजरांवाला के लोग थोड़ा जाते थे, पूरे पाकिस्तान में ये रुझान मौजूद था। यानी गुजरांवाला के अलावा इधर कोई रोटी नहीं खाता, सब बाजरा खाता है। इतनी नहीं खाता नहीं, मैंने समझा शायद उकाड़े में भोरे खाते हैं। गुजरांवाले की रोटी फूटनी शुरू हो जाती है। जाने भी तो क्यों नजर लगानी है? क्यों तुम मेरा ध्यान पड़वाते हो फिर? अल्लाह ताला की रहमत से जितना सिंगल दरवाजे का एक पट होता है उतना एक बाट होता है। तो यह है ना, फिर उसने याद ही खाना है ना अपनी जिस्म के हिसाब से। वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं, बटों को ही परौने होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बट का परौना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बट किसी गैर बट का परौना बन जाए ना फिर बड़ा मसला हो जाता है। बट में डोलना हुआ बट में डोलना। मुझे सिर्फ आऊं की समझ आई है बस। ये एक गाना था। अच्छा यार, बात तो सुनो। क्या मैं तुमसे एक बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं कि पहले वक्तों में ये होता था कि रिश्तेदार, अजीज, बहन, भाई, बच्चों समेत चंद दिन के लिए एक दूसरे के घरों में जाके रहते थे। खास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में चंद दिन के लिए जरूर रहते थे। अब ये रुझान तकरीबन खत्म होता जा रहा है। सिर्फ शादी ब्याह के मौके पे हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं। और मेरी जाती राय में इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? कि जरूरत से ज्यादा बच्चों पर तालीमी दबाव, तालीमी मसरूफियात का जरूरत से ज्यादा दबाव। वो भी तुम्हारी बात ठीक है, मगर माफी चाहता हूं मैं, ज्यादातर जाके लोग रहते थे नानी अम्मा के घर, क्योंकि नानी उस वक्त केबल देखती नहीं थी, वो फिर अपने दोतरे पोतरे देखती थी। अब नानी ने भी केबल लगाड़ी हुई है। नानी कहती नहीं है कि आ जाओ बच्चे लेके। नानी लोगों को मलका एलिज़ाबेथ का रोल करते हुए देख के खुश होती है। हाँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। उस वक्त तो जब
नानी के घर महीना 1.5 महीना या 20-25 दिन रह के बच्चे वापस आते थे तो नानी बेचारी 2-3 दिन रोती रहती थी, उदास हो जाती थी एकदम। अब बच्चों के पास भी बेशुमार एंटरटेनमेंट है, बच्चे भी सारा साल अडीकते होते थे कि गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना है, नानी ने कहानियां सुनानी है, नानी के पिंड में पिपल के थल्ले वड्डे बोर्ड के थल्ले खेलना है, और छत्ती गेमे शेमे, या पिंड का कोई माड़ा सा कुत्ता पकड़ के उसको रस्सी बांध के तो उसको लिए फिरना है गली गली। कुत्ता ही नहीं था बच्चों को बोर होने देता, या वो कोई साइकिल का टायर पकड़ के डंडे के साथ उसे चला रहे हैं, सारा पिंड दौड़े लगा लगा के हाफ के फिर आके घर पड़ जाता। और अब सारी एंटरटेनमेंट, सारा प्यार मोहब्बत नानी दादी इसमें आ गई है या इसमें रह गई है। हाय बस 24 घंटे इसने बेड़ा गर्क कर दिया सारे रिश्तों का, सारे मेल मिलाप का, सारी सैरो तफरी का। सही जो खाना खराब किया है ना वो ये मोबाइल फोन ने। बिल्कुल। अब बच्चे जो हैं उनको अब्बा जी की परवाह नहीं होती, अब्बा बेचारा परे बैठा हुआ बच्चा सप बना रहा है। यार खुदा के लिए जो अब्बा बन गया हुआ है उसको तो देखो सप बाद में बना। हम जिन कामों के लिए यानी वालिदैन के साथ बाहर जाने के लिए जिद किया करते थे छोटी छोटी जगहों पे, यानी घर से 10 मिनट के लिए अगर कहीं बाहर जाना है तो बच्चे जिद करते थे, अब बच्चे नहीं जिद करते, बच्चे घर में रहना प्रेफर करते हैं। यार बच्चों को कहो कि आओ बेटे जरा फलां के घर जाना है, वो कहते हैं कि आप अकेले ही हो आए, मुझे स्कूल का काम मिला हुआ है। और आप ऐसे बाहर निकले तो वो पकड़ के मोबाइल का स्कूल का काम शुरू कर देता है। स्कूल वालों ने सिर्फ हर बच्चे को यही काम दिया हुआ कि सप बनाओ। मेरे ख्याल तालीमी दबाव भी बहरहाल एक बहुत बड़ी वजह है। पहले वक्तों में कौन सी इतनी अकेडमीज होती थी, कौन सी ट्यूशंस होती थी, समर कैंप्स होते थे। यार अब तो अजाब पड़ गया है कि बच्चा पूरे साल के 365 दिनों में एक दिन के लिए फारिग भी नहीं होता। बिल्कुल। अब ना ही कोई इंतजार कर रहा होता है। अब यार पहले तो नानी बेचारी 2-3 महीने पहले ही पूछना शुरू हो जाती थी कि कब छुट्टियां हो रही हैं, कब बच्चों को लेके आ रही हो। अपनी बेटी को या अपने दामाद को कहना शुरू हो जाते थे। अपना नवाज अंजुमनी एक्टर ये मुझे बता रहा था कि मेरी नानी मेरी अम्मी को फोन कर करके हलकान हो जाती थी, पुत्र कदों डब्बे नूं लैके आने। डब्बा होता था ना गोल सा ही, तो इसकी 6 डब्बा होती थी सारे। और 1 या 2 दिन के काम के बाद दोबारा फोन कर करके हल्कान हो जाती थी कि डब्बे नूं लैके कदों जाने। फोन करके कहती थी पुत्र डब्बा भर गया लै। शरारतें बहुत करता था ना जी। और फिर नानी अम्मा ने बच्चों के आने से पहले तैयारी करनी, बकायदा टाफियां टिक्कियां मंगवा के रख लेनी घर, अपना पिस्ते बादामों वाला गुड़ बना लेना, पिन्नियां बना लेनी, इस तरह की चीजें बना के घर रख लेती थी कि बच्चे आएंगे तो वो खाएं पियेंगे। गन्ने कमाल जिसे कहते हैं, गन्ने रख लेते थे घर, आके बच्चे गन्ने चूपणगे। अब तो पता ही नहीं बच्चों को कि ये जो गन्ना होता है इसको चूसना भी होता है। मतलब सिर्फ ये सब कुछ नानी करती थी? नहीं, अगर कोई नाना चलने फिरने जुगा होता था तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ करता था। मेरा मतलब है दादा ददेहाल को आप भूल ही गए हैं। नहीं वो भी, वैसे नानी का ये कर इसलिए कर रहा हूँ कि दादियों के तो पास ही ज्यादा बच्चे रहते थे ना। उस वक्त तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही था, ज्यादा बच्चे दादा और दादी के पास ही होते थे, इसलिए सैरो तफरी के लिए नानी के अलावा फूफियों के पास भी जाते थे। क्योंकि किसी की फूफी भी आई हुई है चकवाल, किसी की भी आई चकवाल रिहोड़ी बहुत अच्छी। नारोवाल वाली फूफी भूल गए? हाँ, नारोवाल वाली फूफी वो होती थी, और सोदरे वाली फूफी एक होती थी, वो बात ना अल्लाह बख्शे बड़ी अच्छी खतून थी। इस तरह टोर फिर के भी बड़ा मजा आता था। ये भी होता था कि 10 दिन नानी के घर रहना है, 5 दिन फूफी के घर, 7 दिन अपना वड्डी खाला के घर। अच्छा फूफी का मैंने सबसे कट दिन का 5 दिन, 5वें दिन के बाद फूफी गर्मी खाना शुरू हो जाती। बहरहाल दीदी साहब, हर रिश्ते का अपना रंग और अपनी खुशबू होती है। मगर मेरी तो हर फूफी का अलग रंग था। 7 फूफियां थी मेरी 7 रंगी। फूफियों की कौसे कजा थी पूरी। हाँ जी 7 फूफियां और 7 रंगियां। हाय 7 रंगियां बखा दे फूफियां। वाह जी साहब, आपके पास इतना ह्यूज कलेक्शन है म्यूजिक का। म्यूजिक का नहीं, फूफियों का। नायरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी फूफी, छोटा सा वक्फा। फूफा
नाज़रीन, इम्तिहानात का सीजन और हमारा पुराना मेहमान हमारा बबलू, और आज हैं उसके साथ उसके टीचर. He is going to school, he is going to school, he is going to school, he is going to school. सर मुझे याद हो गया. मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल, इसे सारी रात तू अच्छी तरह से याद कर, इसको अच्छी तरीके से पका. कितना को पकाऊं? हांडी में डाल के चूल्हे पे रख दूं? सारी रात पकाऊं? ये सबक है या कुन्ना गोश्त है? इतने कुन्ने मत बनो, जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो करो. इसे अच्छी तरीके से दोहराओ ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाए. चलो ये इसकी इंग्लिश बनाओ. आज बारिश हो रही है. आज बारिश हो रही है. हाँ. He is going to school, he is going to school. Shut up! तंग है. मैं तुझसे तंग हूँ बेटे. इसकी इंग्लिश बनानी है बेटा. आज बारिश हो रही है. It is shut up today. लो, शराब का मतलब होता है छप्पड़. अब अपने उस्ताद मोहतरम को अंग्रेजी का तर्जमा भी तुम बताओगे? तो कूल का भी तो मैं नहीं बताया था, वरना आप तो ठंड पे ही रुके हुए थे. कूल डाउन. फिर चिल का भी मैं नहीं बताया था. हाँ, फिर लॉल्स का भी मैंने बताया था. अबे ओ भगलोल, क्यों मेरी यहाँ बेइज्जती करवाने तू? उस वक्त भी यही किद कर रहे थे. लॉल्स नहीं बेटे, बगलौल होता है. मैंने फिर बताया कि लाफ आउट लाउड होता है. जब से ये बच्चा मेरी क्लास में आया है मेरी बेइज्जती शुरू हो गई है. पहले कौन सा स्टूडेंट आपको सुपरमैन कहते थे? अच्छा, आपकी अपनी तालीम क्या है? उसके बारे में भी बुखलाए हुए हैं. अच्छा. एक दिन हमें कहती है कि तालीम एक जेवर है, तो अगले दिन कह रहे होती हैं कि जेवर मर्दों पे हराम है. शट अप! मैंने FACT किया हुआ है. मैंने पूछा सीटी कहाँ से किया है, तो सीटी मार के कहते हैं यहीं से किया. मुझे इजाजत दीजिए, मैं इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं. तुझे मैं घर से समझा के लाया था कि जिस टाइम प्रोग्राम में बैठो तो बेटा ज्यादा नहीं बोलना. चुप होते हैं, चुप. घर वाले तुझसे तंग है, मैं तुझसे तंग हूँ, क्लास वाले बच्चे तुझसे तंग है, पूरा स्कूल तुझसे तंग है. मैं क्या करूँ? किधर चला? मर क्यों नहीं जाता मैं? मुझसे भी तो कोई पूछे ना कि मैं किससे तंग हूँ. किससे तंग हो? तुम अपने उस्ताद से तंग हो. और क्या, हर वक्त सारी क्लास का गुस्सा मुझसे निकालते रहते हैं. मुझे कह देते हैं कि घर जाके पढ़ा करो. मैं कहता हूँ स्कूल में मैं क्या वेल्डिंग सीखने आता हूँ? इधर पढ़ाओ. जब घर से पढ़ के आए तो कहते हैं ये कहाँ से पढ़ के आ गए हो? मैंने जो पढ़ाया वो क्यों नहीं तुम्हें याद? तो चाहते क्या है? कहते हैं मुझसे ट्यूशन पढ़ो. अच्छा. हाँ, तो ट्यूशन पढ़ने के लिए मैंने कहा फिर आ जाया करूंगा. तो घर इनका इतनी दूर है. कहते हैं फिर तालीम हासिल करने के लिए तो चीन भी जाना पड़े तो जाओ. मैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर ही हूँ. तो माशाल्लाह, आप उसे होम ट्यूशन पे क्यों मजबूर करते हैं? कमजोर है. मैं कि टोरदा डिग पे ना. सीधी बात बताएं कि पैसे बटोरने होते हैं. शट अप! दिमागी तौर पे ये कमजोर है, जिस्मानी तौर पे तो ये 12-12 पराठे शपड़ खा जाता है. पहले 3 पीरियड तो कुकी में गुजार देता है ये. 1-2 मरतबा नींद क्या आ गई, अब बात ही पकड़ ली हुई है. उस दिन जरा फिल्म लगी हुई थी रात को, वो देख ली तो सुबह क्लास में सो गया हूँ. तो कहती हैं कि सोया ही रहता है. उसके बाद मैं एक दिन भी नहीं सोया. अच्छा. खुद जो 2-2, 3-3 मरतबा क्लास में सोते हैं वो नहीं बताते. किसी बच्चे की जरूरत भी नहीं होती उठाने की. अच्छा. खुद ही जोर से खराटा मारते हैं और अपने खराटे के डर से ही उठ जाते हैं. फिर मैंने पूछ लिया एक दफा, मैंने कहा आप फिर क्यों क्लास में सोते हैं? कहते हैं कि यार मैं BA की तैयारी कर रहा हूँ, रात को जागता रहता हूँ. अच्छा. इनके मोहल्ले का एक लड़का है मेरे साथ पढ़ता, राफे. अच्छा. राफे ने बताया कि ये सारी रात तो बैठ के बाहर थड़ों पे ताश खेलते हैं. मेरी स्टिक कहाँ है? और क्लास रूम में नींद आ रही होती है और बाहर जाके मास्टर फजल साहब के साथ
कतरीना की बातें कर रहे होते हैं। मुझे मेरा डंडा मिल जाए तुम। डंडा? आप स्टूडेंट्स को मारते भी हैं? नहीं, हमारा तो स्लोगन है मार नहीं प्यार। वो सियाने कहते हैं कि बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की आंख से। तो कौन सा शेर है जिसे ऐनक भी लगी हुई है? इतनी छोटी मूंछों वाला शेर। हमने कहा हमारे साथ दोस्ती बनाए, बाहर टीचर्स के साथ बैठ के आप कतरीना की बातें करते हैं, हमारे साथ क्या करें? हम भी कतरीना की फिल्म ही देखते हैं, हम कौन सा मिर्जा गालिब देखते हैं। आगे से कहते हैं नहीं बेटे आप अभी छोटे हैं, आप कतरीना ना देखा करें। मैंने कहा 24 घंटे तो हमारे टीवी पे भाग दौड़ रही होती है, आप उस पे कपड़ा डाल दें। लो बताओ नाजिया जी, यकीन करना कि मैंने अपनी जिंदगी की जो पहली फिल्म है वो तालीम का सफर मुकम्मल करने के बाद देखी थी। तालीम का सफर ऐसे कह रहे हैं जैसे PhD की हुई है। एक दफा अपने सर्टिफिकेट लाए थे साथ। अच्छा। इनके मैट्रिक की सनद में और FA की सनद में 8 साल का फर्क है। जुनेद साहब यकीन कीजिएगा पहाड़ी की ट्यून का मूजिक मैं हूँ। ये सबसे पहले मैंने बनाया था, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, ये मैंने किया। तर्ज किसी और ने बनाई थी, आपने सिर्फ स्टेप बताया था। और वो भी इसलिए ये स्टेप किया था कि बाजू छोटे हैं, कोट के अंदर ही कहीं कर लेते थे। ओके खुदा हाफिज, फिर कभी उठ तू चल जरा। अभी मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं कोई पहली दफा नहीं आया, मुझे तो अंकल जुनैद बुलाते रहते हैं। आप आए हैं पहली दफा। वैसे ही तो नहीं गेट वालों ने रोक लिया था, मैं अकेला गुजर आया हूँ। पीछे से ऊंचा ऊंचा कह रहे थे सिक्योरिटी वालों को, ये जो जा रहा है जीन वाला लड़का, मैं इसके साथ हूँ। मेरा तो जी चाहता कि मैं तुम्हें घुमा के मारूं। दे घुमा के दे, 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 घुमा के दे। एक दफा बज़्म अदब में इन्होंने डांस भी करके दिखाया था। किसमें? इन्होंने बज़्म अदब में मेरे क्लास फेलो ने अमजद ने पोएम सुनाई ना, तो उसने गा के सुनाई, तो उस पे कहते हैं डांस भी हो सकता है, तो उठ के डांस करना शुरू हो गए। शट अप! मैं मारूं थप्पड़ तुझे मैं। मुझे मारूं थप्पड़, इस एक्शन से कई दफा आंख में उंगली मार बैठी। मुझे थप्पड़ मार रही है। याद है ना जब डांस किया था तो कितने स्टूडेंट्स ने चौक मारे थे। आगे से शर्मिंदा नहीं हुए, कहती है मैं तो सोनी धरती अल्लाह रखे पे भी डांस कर लेता हूँ। मैं तुझे अब क्या कहूँ, तेरा बाप क्योंकि बड़ा आदमी है उससे डर लगता है, और दूसरा तेरे वजूद से डर लगता है मुझे। यकीन कीजिएगा जुनैद साहब कि मैं आपको क्या बताऊं, अब तो बच्चों को घूर के देख लो तो मीडिया वाले कैमरे उठा के आ जाते हैं, और ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा होता है कि टीचर का बच्चे पे तशद्दुद। कैमरे वाले आ जाते हैं तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? इतने से तो आप हैं, कैमरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। वो बात कुछ और है, वो पानी सर से गुजरना होता है। जुनैद साहब हमारे दौर में यकीन कीजिएगा माँ बाप कहते थे कि खाल तुम्हारी बच्चा हमारा। तो गलत कहते थे ना, खाल तो शौकत खानम की होती है। और जिस तरह की आपकी खाल है ये तो शौकत खानम वाले भी नहीं लेते। तो छोटी मोटी तंजीम ले ले तो अलहदा बात है। जुनैद साहब मैं आपको इसके बारे में क्या क्या कुछ बताऊं। यकीन कीजिएगा जब ये स्कूल आता है तो यूनिफॉर्म में नहीं आता, और जो इसका बैग है उसमें किताबें कापियां नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल होते हैं। तो डैडी लेके देते हैं, मैं कोई गली में से तो नहीं छीनता। तो यार स्कूल तो ना लेके जाया करो। स्कूल लेके जाता हूँ तो ये रोजाना पूछते हैं ना ये कितने का लिया। अच्छा। मैं कई दफा कहता हूँ, कल भी बताया 28,000 का है, फिर पूछ रहे होते हैं ये कितने का लिया। जिस तरफ इनका इशारा होता है मैं समझ रहा होता हूँ, मैं फिर भी नहीं समझता। इशारे इशारे में पूछ रहे होते हैं, जब मोबाइल से जी भर जाएगा तो किसको दे दोगे?
میں بھی نہیں کہتا آپ کو, میں بھی کہتا ہوں جی بڑھ جائے گا تو پھینک دوں گا. آگے سے فضول خرچی پہ لیکچر دینا شروع ہو گئے. مجھے کہتی ہیں تم مجھے اس کی اپلیکیشن سمجھاؤ, پھر میں تمہاری چھٹی کی اپلیکیشن منظور کر لوں گا. جنید صاحب, اصل میں جب کتابیں کاپیاں نہیں ہوں گی, جو چیز جس کے پاس اویلیبل ہوگی اسی کا استعمال ہوگا نا. معاف کیجیے گا, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا سارا دار و مدار صرف ٹیوشنز پہ ہوتا ہے. کوئی ماں باپ اپنے بچے کی شکایت لے کے آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک واحد علاج ہوتا ہے کہ جی اس کو ٹیوشن شروع کروا دیں. بھئی اگر بچے نے صرف ٹیوشن ہی پڑھنی ہے تو آپ لوگ اسکولوں میں پھر کیا لینے جاتے ہیں؟ تنخواہ. صرف تنخواہ لینے جاتے ہیں اور سارا مہینہ اسکول میں بیٹھ کے پہلی تاریخ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پہلی تاریخ سے تو ان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے پوچھتی ہیں آج کیا تاریخ ہے, میں نے کہا 31, تو مجھے چھوٹی سے مارنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں پہلی کے ساتھ تجھے 3 لگانے کی ضرورت کیسے ہوئی ہے. ایک دفعہ کیلنڈر کے آگے کھڑے ہو کے 11 تاریخ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے 1 سے جو کام چلتا ہے تو یہ 7 دوسرا 1 کس لیے ہے. اچھا ویسے سر, آج کل آپ لوگوں کا سارا زور نا بچے یا اسٹوڈنٹ کے نمبرز پہ اور ان کی ڈویژنز پہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی بھی تربیت کے لیے موٹیویٹ نہیں کیا انہیں؟ موٹیویٹ سے مجھے یاد آ گیا, موٹیویٹ کا سن لیں. میں نے ایک دفعہ کہا کہ سر موٹیویٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ آگے سے کہتے ہیں موٹی انتظار کر رہی ہے. کر لو جہاں پھنسی ہو نا ہم ان سے ڈانس کرواتے ہیں. Stand up! Stand up! Get out my school! Get out from my school. اب پتہ چل گیا جنید انکل میں کیوں فیل ہوتا ہوں. آج کا حال خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. چلے آئے پھر گھر چھوڑ کے آؤں.